بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فرا. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاک شو. بہت سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے، مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے. ہمیشہ آپ کو بہت کچھ بتاتی ہوں آپ کے صحت کے متعلق. آج مگر جو میرے پاس ٹاپک ہے وہ ایک بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے، یا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. ذہنی مریض لوگ ہو گئے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں. ان کی خاص کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ کا بے روزگار ہونا؟ ڈپریشن کیا ہے؟ آپ ہمیشہ سنتے ہیں جی میں بہت ڈپریشن میں ہوں، یا میں بہت زیادہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا. بغیر وجہ کے آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں. گھر میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ غصہ کرنے لگتے ہیں. یا وہ ہاؤس وائف جو بغیر وجہ کے بہت زیادہ غصے میں رہنے لگی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. ہمارے ٹین ایج جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اگر ان کے مطابق اگر ان کو وہ گریڈز نہیں مل رہے، وہ خودکشی کر رہے ہیں. تو ان ساری سب کی کیا وجوہات ہیں؟ ان سب کے پیچھے آخر ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے میں نے آج بلایا ہے اپنے پاس ایک گیسٹ کو، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سارہ شبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ بہت ہی مشکل، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بڑا مشکل سا ٹاپک ہے سارہ، کیونکہ میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں جو کہ اگر وہ موٹے بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ خاموشی ان کو لگ جاتی ہے. یا اگر اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کوئی اچھا گریڈ نہیں آ رہا، جیسے کہ ابھی میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے یا سوسائڈ کمٹ کر لیا ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کاروبار کے مسائل ہیں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو ٹیکس کے ایشوز آ رہے ہیں، اس سے بھی لوگ جو ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر سارہ سے جانتے ہیں کہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. جی سارہ. دیکھیں، ڈپریشن کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈپریشن ذہنی دباؤ ہے. جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے، آپ لو فیل کرتے ہیں، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، آپ کو پہلے رات میں نیند آنا بالکل ختم ہو جاتی ہے، آپ کا ایپیٹائٹ بہت لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں مزید آپ کے جسم کو، ذہنی امراض کو بڑھاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اس وجہ سے اب کیا ہوتا ہے، لوگ جب بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ذہنی دباؤ مزید بڑھتا جائے گا آپ کا. اب جب یہ بڑھتا جائے گا تو آپ کے حالات، اب چاہے وہ آپ کی فیملی میٹرز ہوں، آپ کے دوست ہوں، ساری چیزیں وقت کے ساتھ بگڑتی جائیں گی. تو یہ چیزیں سوسائٹی میں بڑھ اسی طرح سے رہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی انسان کو ڈپریشن نہ بھی ہو، مگر جن مسئلوں کو آپ نے ابھی بیان کیا ہے، اس وجہ سے انسان بہت ایزی ہے کہ اب وہ ڈپریسڈ ہو جائے بہت جلدی. صحیح بات ہے. ہماری اسکرین پہ نمبر بھی چل رہے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سارہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیا آپ کیا ڈپریشن کا شکار ہیں جو آپ کے ساتھ حالات چل رہے ہیں. کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے دل کی بات میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں. ڈاکٹر سارہ، اگر کسی کو یہ کہا جائے نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تم تھوڑا سا جاؤ سائیکالوجسٹ کو دکھاؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ، تو لوگ کہتے ہیں میں کیا پاگل ہوں، میں کیوں جاؤں. تو کیا یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ وہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے جو آپ نے بات کی کہ جب ہم بولتے ہیں آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، تو پہلی ایک بات آتی ہے آپ پاگل ہیں، کیونکہ اسٹگما بہت ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کلچر میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجی کتنی ضروری ہے. سر کا درد ہوگا، فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن ذہنی دباؤ میں آپ کبھی اپروچ نہیں کرتے ایک سائیکالوجسٹ کو. تو کب جانا ضروری ہے؟ یہ تب جانا ضروری ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیں. ایک انسان اپنی پوری ڈیلی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی ہیں، اب وہ کمرے سے باہر نہیں نکل رہا، جس کو ہم کہتے ہیں آئسولیشن. اب یہ وہ ٹائم ہے جب آس پاس جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس کی لائف میں اتنا بڑا چینج آ گیا ہے. یہ پوائنٹ ہے کہ اس کو ایک ڈاکٹر یا ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہ کھانا نہیں کھا رہا، بند کمرے میں ہے، لائٹس آف ہیں، جاب چھوڑ دی ہے، چاہے وہ اسکول نہیں جا رہا، کالج یونیورسٹی نہیں جا رہا، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اس کے لیے. اور کوئی چیزیں ڈسکس نہیں کر رہا، خاموش رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر سارہ، انزائٹی کی ایک وجہ یہ بھی، انزائٹی تب بھی آپ کو پتہ چلتی ہے بہت سے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی بھوک بڑھ جاتی ہے. جی بالکل. بہت سے لوگوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ بہت سونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی خاص فرق آپ کو لگے گا کنڈیشن میں، یا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا سمٹم ہے. اب جیسے ڈپریشن انزائٹی میں ہو رہا ہے، ایک شخص بالکل نہیں کھا رہا، ایک شخص کا ڈپریشن کی وجہ سے ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اگر انزائٹی میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ اسٹریس ایٹنگ ہوتی ہے. اب بہت زیادہ اینشیس ہو رہے ہیں، اب آپ کو کچھ نہیں، آپ اسٹریس میں آپ
آپ بہت زیادہ اسٹریس ایٹنگ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ایک سمٹم ہے اس کا. ضروری نہیں ہے کہ نیند بالکل نہ آئے, ہو سکتا ہے نیند بہت زیادہ ہے جس کو آپ ہائپرسومنیا کہتے ہیں. دونوں طرح سے یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کی کوئی گھر میں آپ کے قریب یا آپ کی اپنی بھی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے جو ہم نے ابھی یہاں پہ ڈسکس کیا, آپ لازمی ڈاکٹر کو دکھائیے. دیکھیے سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ دماغی ضروری نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کوئی آپ پاگل ہیں, پاگل نہیں ہیں آپ. بہت سی چیزوں کو جس طرح آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, ہمارے جو معیشت کے حالات ہیں, جو ہمارے کاروبار کے حالات ہیں, وہ بھی آپ کو پریشان کر کے آپ کے دماغ پہ ایک دباؤ ڈال سکتے ہیں. آپ کی پوری باڈی کو جو میسج دیتا ہے وہ آپ کا دماغ دیتا ہے. اگر وہی پراپر کام نہیں کرے گا تو آپ کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں. کوئی مجھے یہ بتائے, اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اسٹوڈنٹس لائف کیا فیس کرنا پڑتا ہے آج کل آپ کو؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس لائف میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ پریشر بہت ہوتا ہے. اب جب ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے اتنی, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا رجحان بھی نہیں ہے یہاں پہ, تو ایک پریشر سب سے پہلے آتا ہے جب آپ نے اے لیولز یا انٹر کمپلیٹ کر لیا تو اب آپ کس فیلڈ میں آگے جانا چاہیں گے. ایک بچہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پسند کی چیز پہ جانا ہے, اور پیرنٹس پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جاؤ, اس کے آگے جو ہے بہت ڈیمانڈ ہے, بٹ آپ اس کے اسٹرینتھس نہیں دیکھتے وہ کہاں جانا چاہتا ہے. پہلا ایک وہاں پہ اس کے ساتھ اسٹرگل فیز آتا ہے جس میں وہ لو فیل کرتا ہے. اب آپ نے اس کو انٹر کر دیا اپنی اس فیلڈ میں جہاں آپ چاہتے تھے, اب وہ بہت چیلنجز فیس کرے گا. ٹھیک ہے, ایک یہ چیلنجز ہو گئے. پھر دوسری طرح کا اگر ہم ٹین ایج ڈپریشن میں جائیں اور جائیں, بولینگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں بچے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت بلی ہو رہے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم ڈیمیج ہو رہی ہے, بہت چانسز ہیں آگے جا کے پرون ٹو ڈپریشن وہ جائیں گے ڈپریشن میں بہت جلدی. تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس بہت اسٹرگل کر رہے ہیں ان چیزوں کو لے کے, پھر گریڈس کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے, اچھی جابس نہیں ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو میں نے فیس کیا, جو میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں یا اسٹوڈنٹس آتے ہیں چھوٹی ایج کے, کہ آپ اگر کہیں ایسے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ افورڈ بہت مشکل سے ہوتا ہے, اور آپ اگر کسی اچھی یونیورسٹی, اچھے اسکول یا اچھے کالج میں اس کو اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بہت سے اپنے ضروریات کو روک کے اگر بچے کی پڑھائی کریں, لیکن وہاں کا ماحول وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. جی بالکل. اس صورت میں بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا دماغی تناؤ یا دماغی دباؤ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ دماغی تناؤ بڑھ جاتا ہے جب وہ بچہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں انٹر ہو رہا ہے, تو اس کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوتا جس انوائرمنٹ میں وہ جن بچوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے. اب وہ کسی اگر ہو سکتا ہے بہت لو مڈل کلاس سے آ رہا ہے, بہت ایلیٹ یونیورسٹی میں جا رہا ہے, بہت کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب چاہے وہ اس کی اسپیکنگ پاور ہو یا اس کا کانفیڈنس لیول ہو, وہ کچھ بھی ہو, پریزنٹیشنز دے رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں چیلنجز کو فل میٹ کر پا رہا جو باقی لوگ میٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک پریشانی, انگزائٹی, اینشیس ہو جاتے ہیں وہ بہت جلدی, جو آگے جا کے اگر کچھ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ کو پتہ ہوگا پینک اٹیکس میں بن جاتا ہے کہ فینٹ ہو جانا, گھبرا جانا, چکر آ جانا, بیٹھ جانا اس جگہ پہ, یا آپ کو ہوش نہیں رہنا آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ ڈپریشن نہیں ہے صورت میں ہو سکتا ہے, بٹ وہ اینشیس ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں, انگزائٹی کی وجہ سے ہو جانا. تو سب ان وجوہات کی وجہ سے لوگ نشے کے بھی شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. اگر ہمارے جو گھر کے لوگ یعنی ماں باپ یا بڑے بہن بھائی اگر اس بچے کو یا اس بچی کو وہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کیا چینجنگز آ رہی ہیں, تو میرے خیال میں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. آپ ایک بچہ گھر پہ وقت گزار رہا ہے, اور سب سے پہلی بات ٹیچرز, زیادہ تر وقت جو ہے بچے اسکول میں بھی کالج یونیورسٹیز میں گزارتے ہیں. ٹیچر بہت بڑا چینج اگر دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ان سے بات کریں کہ آپ ایسے چینج نوٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ کافی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہ نہیں بات کر رہا کلاس میں, تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اب اپروچ کرتے وقت کیا کرتے ہیں, آپ سب سے پہلے ڈانٹتے ہیں اس بچے کو کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہو, کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی. آپ نے یہ باتیں نہیں کہنی ہے, آپ نے اس سے بڑے آرام سے پوچھنا ہے, جو بھی مسئلہ مجھے بیان تو کرو ایٹ لیسٹ. لیکن اگر میں اپنے دور کی بات کروں, اپنے اسکول کی بات کروں, واقعی ہمارے ٹیچرز ہمارے ساتھ اس طرح ہوتے تھے کہ ہمیں کبھی کبھار امی سے زیادہ ٹیچرز کے ساتھ باتیں شیئر کرنے کا مزہ آتا تھا, اچھا لگتا تھا, اور ہم کرتے تھے. مگر آج کے دور میں اگر میں دیکھوں تو ٹیچرز کا ریلیشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ نہیں رہا.
तो ये भी ठीक नहीं है, ये तो भी क्या ठीक हमें नहीं उन है। टीचर्स की भी काउंसलिंग की जरूरत है? देखिए इसमें जो है ना, टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी लेवल का हो, सबको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे स्कूल्स में स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रुझान भी बिल्कुल नहीं है। नहीं है। आपको सिर्फ बहुत अच्छे स्कूलों में मिलेगा, कोई 1 या 2 स्कूल साइकोलॉजिस्ट होंगे, वरना इसके अलावा नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी एक पूछने ही की शायद किताब इसके ऊपर दी जाती है, जिसको आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इशू है। इसको बिल्कुल इस तरह दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग ही ठीक नहीं है तो आप और कैसे काम करेंगे। आज जो हालात हैं डॉक्टर सारा, इसका आपकी नज़र में, आपके पास पेशेंट आते होंगे, कितना असर हुआ है लोगों पे? देखिए बहुत असर हुआ है। अब लोगों की जॉब्स वो नहीं हैं, लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो गए हैं, उनको समझ नहीं। इससे क्या होता है कि अगर लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी है, अब चाहे वो कोई फैमिली है, कुछ है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स नहीं रही हैं। लोग इतना ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि वो कहते हैं हम घर जाके किस तरह से बात करें। अगर हम बात भी करते हैं वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है, लोग उलझ जाते हैं एक दूसरे से। वो ये नहीं समझते कि उसका मसला क्या है, उसको किस बात पर समझने की ज़रूरत है। अब जो ये ज़हनी दबाव में जाने की वजह घर के मसले भी बहुत ज़्यादा है ना, कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, आप बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, आप फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ये सारी चीज़ें मिल के ना इंसान को बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, बीमार कर देती हैं। बीमार कर देती हैं। ये एक बड़ा मसला, आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये कहा लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं आप, हार्ट डिजीज किलर है आपका, फिर आप चले जाते हैं हार्ट की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप क्या कहना चाहिए, विदाउट एनी रीजन, किसी वजह की वजह से आप गुस्सा हो रहे हैं, आप शाउट होना शुरू हो गए, आप अगर एक धीमे मिजाज के इंसान हैं तो आप चीखना चलाना शुरू हो गए, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसमें आप मुझे बताइए। देखिए पर्सनैलिटी चेंज अगर आप देख रहे हैं, पर्सनैलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है, जैसे टीनेज के टाइम पे डेवलप हो रही होती है। अब कोई पर्सनैलिटी चेंजेस हो रहे हैं, एकदम से गुस्सा आ रहा है, तो ये एक साइन है कि आप अप्रोच कर लें। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे, आप नॉर्मल एक डॉक्टर से ही बात करके देख लें, आपको वही शायद काउंसिल कर दे। अगर आप इतना स्टिग्मेटाइज्ड हैं, नहीं जाना, फिर हो सकता है एक डॉक्टर देखिए सबसे पहले लोग एक जनरल फिजिशियन के पास तो जा ही रहे होते हैं। अगर वही लोगों की हेल्प करते हैं कि जाओ जाके थोड़ी सी काउंसलिंग ले लो। अब आपका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन की वजह से अगर आ रहा है, अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये आपकी कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, निकलनी है। अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट की वजह से परेशान है, आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, बॉस पे ऑफ कोर्स नहीं निकल रहा, कोलीग्स पे नहीं निकल रहा, वो डिस्प्लेस हो रहा है घर पे आके। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप लेके चल रहे हो सारी चीज़ को, अब वो घर जाके पूरा फैमिली पे या बच्चों पे डाइवर्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। एक इंसान का जो दिमागी दबाव है वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। अक्सर मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर सारा के पास भी आते होंगे, कि एक जो घर का सरबराह जिसको हम कहते हैं, अगर वो परेशान है तो उसका असर पूरे घर पे आता है, और वो बगैर वजह के उसका हाथ भी उठ जाता है अपनी वाइफ के ऊपर। जी बिल्कुल। इन चीज़ों को देख के वो बच्चे कितने ज़्यादा दिमागी मरीज हो सकते हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते बोलते खामोश हो जाते हैं, हकलाने लगते हैं। उसका बड़ा मसला भी यही है, घरेलू झगड़े। तो उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। इस पे भी आप मुझे बताएंगे, हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मसले के बारे में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं सारा, आपको बताएंगी कि दिमागी दबाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफ की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि पागल एक बहुत अलग चीज़ है, इसको हम पागलपन में नहीं कहते हैं, लेकिन जब आप सुसाइड की तरफ चले जाते हैं वो एक बड़ा मसला है। डॉक्टर सर, आपने मुझे बताया कि भी एक स्टूडेंट ने भी सुसाइड किया, उसकी क्या वजह थी? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि ये सुसाइड जो है सिवियर डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेसिव, जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाना। अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, विदाउट मेडिकेशन क्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब जिसमें सिम्टम साइन सुसाइडल आइडिएशन आ गई है, ये सिवियर डिप्रेशन है, ये एक इलनेस हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है वजूहात उसकी यही थी जो अभी तक सामने आई है, कि शायद ग्रेड्स, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने की वजह, हमेशा से बड़ा अच्छा स्टूडेंट कोई रहा हो, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब आगे चल के उसको ये कहना अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, मार्कशीट में तो आ गया कि एक एफ लग गया है आपके आगे। अब आप समझ रहे हैं एक एफ लग गया है, आप उसको क्या सिखा रहे हैं? क्या ज़िंदगी में फेलियर के आगे कोई लाइफ नहीं है? आप सीखते कैसे हो कि आप जब फेल होते हो तो ही आपको ज़्यादा लर्निंग मिलती है। सक्सेस जो है आपकी एक अच्छी बात भी नहीं होती है। अब एक एफ लग जाना, उसकी वजह से शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सका, उसकी सेल्फ स्टीम लो थी, फैमिली ने क्या किया, इस तरह के कई बेशतर बच्चे होते हैं जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड की तरफ एकदम तो वो नहीं गया, नहीं जाते, यकीनन उसके अंदर चेंजिंग्स तो आ रही होंगी जो शायद कोई समझ नहीं पा रहा होगा।
تو یعنی کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ہمارے پھر سارے پورے، مجھے تو لگتا ہے آج پورے معاشرے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ان حالات پہ بھی کنٹرول ہو ہی جائے گا. پاکستان کو تو اللہ پاک چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں جس طرح ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایک جنرل فزیشین کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکالوجسٹ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، بے روزگاری ہے، ایک دوسرے میں برداشت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر روڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے قتل کر دیں گے. پیشنس لیول ختم ہو چکا ہے لوگوں کا. یہ بھی دیکھیں، اس کے پیچھے بھی تو ہماری مجھے لگتا ہے ہمارے ماحول کی ہی بہت بڑا ہاتھ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل سے سمجھایا، آفس کا مسئلہ وہ انسان لے کے نکل رہا ہے، کہیں تو اس کو وہ نکالنا ہے نا، وہ فرسٹریشن باہر. ایک معمولی سی گاڑی کی ٹکر ہوئی ہے جس پہ آپ کو اتنا بڑا ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ وہ انسان اٹھے گا، نکلے گا اور اپنے ہاتھ سے مارنا شروع کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں نا کنورٹ ہو کے آپ کا فزیکل ایگریشن جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کے تھرو باہر آ رہا ہے، وربل ایگریشن ہو رہا ہے، آپ کو زبانی طور پہ آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں سے آپ کی چیزیں انوائرمنٹ میں آپ کو روز دکھ رہی ہوں گی ہوتے ہوئے. تھینک یو سارا، آپ نے بہت کچھ بتایا، اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس آتے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ دماغی دباؤ کیا ہے. ویلکم بیک. ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں اکمل خان بات کر رہا ہوں، کراچی مریض. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرا یہ سوال ہے، میرا ایک بیٹا ہے، اس کی عمر ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں گے پلیز. جی جی اونچا بولیے گا تھوڑا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ہے 17 سال کا. ٹھیک ہے. اس کی باتیں اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بچپن ہی کی ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس کے ساتھ کیا کروں. اس کی حرکتیں اور باتیں کیا ہے؟ اس کی عمر جو ہے نا ابھی ایکچوئل جو ہے 17 سال ہے. 17 سال ہے جی، اور جو اس کی جو باتیں ہیں اور جو حرکتیں ہیں، جو بچوں سے لڑنا جھگڑنا، جس کا شرارتی بچے نہیں ہوتا اس طرح ہے، اور پڑھائی میں بھی کمزور ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں. عمر بڑھ گئی ہے مگر اس کا جو بچپنا ہے، یعنی وہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح ہیں. اس میں بھی کوئی دماغ ظاہر ہے، اس میں بھی ریزنز ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں کہ تھوڑا اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس اس پہ ڈومین میں یہ بات کر رہے ہیں، کہ دماغی طور پہ پیچھے ہے یا صرف شرارت کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اپنی ایج کے حساب سے کلاس میں پڑھ رہا ہے یا بہت شرارت کرتا ہے تو اس کو چیزیں سمجھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں پڑھائی میں بھی بہت کمزور ہے. تو شاید وجہ یہ ہے کہ اس کی کنسنٹریشن ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ. اگر کنسنٹریشن ایشوز ہیں، اٹینشن لیک کرتا ہوگا تو اس کو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہوں گی جلدی، شرارت کرتا ہوگا، تنگ کرتا ہوگا، ٹینشن سیکھ کرتا ہوگا. تو ایک ضرورت ہے کہ آپ ذرا بات کریں، ایک اسیسمنٹ کرا لیں اس بچے کی کہ اس کو کہاں پہ ضرورت ہے، کس جگہ پہ اس کو زیادہ ہیلپ ریکوائرڈ ہے. شرارت ہے تو بچے اپنی جگہ پہ کرتے ہیں، بٹ یہ کس طرح کی شرارت کی بات کریں اس کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ کلاس میں نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں، کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں زوبیہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زوبیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی میں نے ابھی ٹی وی آن کرا ہے، آپ کا چینل لگایا ہے، تو میں نے یہ ٹاپک دیکھا تو میں نے کہا چلیں میں بھی تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھاؤں، ڈاکٹر صاحبہ سے بات کروں. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میرا ایک بیٹا ہے 9 ایئرس کا ہے، علی نام ہے اس کا. وہ ضد بہت کرتا ہے، ہر بات میں ضد کرتا ہے، اور مطلب اپنی بات کو مطلب منوا کے ہی رہتا ہے. پڑھائی میں کیسا ہے وہ؟ پڑھائی میں اچھا ہے ماشاءاللہ. بات سنتا ہے آپ کی؟ بات میری سنتا ہے، اور اسکول میں بھی اس کی یہی پرابلم ہے کہ لوگ مطلب ٹیچر اس کی یہی کہتی ہیں کہ ایک دم دوسری چیزوں میں الجھنے لگتا ہے، کہ جیسے باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے یا کوئی دوسرا بچہ کسی چیز میں انوالو دیتی ہے، اس میں انوالو ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر سارا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی آپ یہ سب سے بڑا ہے یا مڈل بورن ہے، یہ بتا سکتے؟ یہ سیکنڈ چائلڈ ہے میرا، اس سے بڑی ایک بیٹی ہے، وہ 12 ایئرس کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کوئی بھائی بہن ہے؟ 4 میری بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو آن ایئر جواب دے رہے ہیں. ہاں یہ جو بات کر رہی ہیں، جو جن کی بات سے ابھی بالکل سمجھ آ سکتا ہے کہ بچہ بہت اٹینشن سیکھ کر رہا ہے، یعنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا، ٹینٹرمس تھرو کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ پیمپرڈ چائلڈ ہو، اب یہ اس کو ڈسپلن مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ نہ کرتا ہو، اب وہ نیگیٹیولی اٹینشن سیکھ کرتا ہو، کچھ ایسی چیزیں کر کے
कि ध्यान मेरी तरफ आ रुखसाना, जाए। एक वजह मुझे ये भी यहाँ पे भी लगी है कि 4 बेटियां हैं उनकी और 1 बेटा है। बिल्कुल हो सकता है। इस तरह की सूरत हाल में भी आप खुद बच्चे को इस तरह की आदि बना देते हैं कि आप उसकी हर छोटी छोटी बात को मानते हैं कि बेटा है, बेटा है, बेटा है। स्पेशल अटेंशन देना जी, और जब आपको लगता है कि आपने उसको स्पेशल ट्रीट कर लिया है, अब उसको जरूरत है कि अब हम उसको अब आप उसको लिमिट सेटिंग या डिसिप्लिन कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको इतनी टाइम जल्दी लगेगा मेरे बड़ा टाइम लगेगा। देखिए स्कूल में भी यही है कि वो कंसंट्रेशन इश्यूज आ जाते हैं, वो टीचर को भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे बड़ी क्लासेस आएंगी, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ही वोंट बी एक्सेप्टिंग दैट ना, तो आपको घर से थोड़ा टाइम लगेगा उसको करते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। कॉलर कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आपका मैंने प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है और थैंक यू सो मच। आपने मुझे पार्टिसिपेट किया और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक के हिसाब से कि आजकल जो है, अब मेरे फ्रेंड भी हैं, कुछ मैरिड हैं, तो वो यही कहते हैं मुझे कि कुछ घर के जो पेरेंट्स हैं वो भी नज़रअंदाज करते हैं बच्चों को, तो उससे डिप्रेशन काफ़ी फैलता है। सही मैम। और उसके अलावा पहली चीज़ तो है घर की नज़रअंदाजी। आवाज़ थोड़ी आप कट लीजिए मेरी। हेलो जी जी जी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो होता है आपका स्टेप घर होता है। उस अगर पेरेंट्स या उनकी फैमिली उनके साथ है तो उसको डिप्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब डिप्रेशन पड़ता नहीं है क्योंकि वो समझा रहे होते हैं, हर चीज में गाइड कर रहे होते हैं। अगर वही उसे इग्नोर करेंगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, अच्छा, एक सेकंड। हेलो, अच्छा आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बताएं, आप बहुत तेज बात कर रहे हैं, हम तक आपका मैसेज पूरा आ नहीं रहा। आप कोई 1-2 मुझे मैसेज बता दें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम, मैंने आपका टॉपिक देखा तो मैं उसके हिसाब से बात करना चाह रहा था कि डिप्रेशन की क्या वजह बात होती है, क्यों फैलता है डिप्रेशन, घरेलू क्या चीजें होती हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनकी मैरिज हो गई है, तो वो यही बता रहे होते हैं मुझे कि घर के अच्छा, इनका मसला ये है कि घरेलू, वही जो हम अभी बात ही सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं। तो ये उन केसेस में होता है जिसमें बोथ पेरेंट्स वर्किंग हो, तो यहाँ पे भी डिप्रेशन होता है। पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है बच्चों को आके देने का, बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो फिर एक आ जाता है बीच में कि वो टाइम नहीं है, सुबह फिर जाना है, रात हो गई है, सो जाओ। आपकी फैमिली लाइफ वुड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इग्नोर हो रहे हैं, वो अटेंशन उनको कहीं और से मिलना शुरू हो रही है, बाहर से दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं वो। तो ये वही बात आ गई जो मैंने आपसे कहा कि जब आप अपने माहौल से हट के दूसरे माहौल में जाते हैं तो भी आपके दिमाग पे असर पड़ता है। हालात ऐसे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, या आप अगर ज़्यादा कमाने के उसमें हैं, मियाँ बीवी दोनों बाहर जाते हैं, बच्चे लाजमी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उनको इग्नोर करते नहीं है पेरेंट्स, हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे डॉक्टर साहब, क्या एक ऐसा वक्त रात का तो होना चाहिए आप साथ बैठ के खाना खाएं, जो बच्चा बताना चाहता है उसके पूरे दिन की एक्टिविटी आप जरूर सुने। बिल्कुल एक टाइम ऐसा तो निकालना चाहिए ना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई देखें, अगर जो भी पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे, आप रात को डिनर तो एटलीस्ट साथ करें। डिनर अलग टाइम पे ना करें, डिनर साथ करें, उसके बाद एक टाइम आप रखें, एटलीस्ट हम 30 मिनट्स इंटरेक्शन रखेंगे। वो भी नहीं मिल रहा, आप डिनर पे पूछें आज का दिन कैसा रहा, किसने क्या किया, कोई मसला आया, कोई इशू आया, टुगेदरनेस पैदा करना शुरू करें अपने साथ। बहुत सी चीज़ें वही रिजॉल्व हो जाएंगी, बहुत सी वही चीज़ें जो है ना आपको समझ आ जाएंगी ये बच्चा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एड्रेस करें, डांटे नहीं, एड्रेस करें उसकी बातों को, जाएं उसको इम्पोर्टेंट फील कराएं कि नहीं ये हम समझ रहे हैं, हम इस पर कोई एक्शन लेंगे या हम तुम्हारे मसले को देखेंगे। मसाइल बहुत सारे हैं, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, लेकिन आपके घर सबसे पहली तरबियत का और माहौल की चेंजिंग आपका अपना घर होता है। अगर बच्चे को इतनी आदत हो जाए कि वो हर चीज़ अपने माँ बाप से, एटलीस्ट मदर से या फादर से, जिसके साथ उसकी अटैचमेंट ज़्यादा है, उसके साथ डिस्कस करने लगे, तो उसको बाहर दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो उनके साथ जाए, अपने दिल का बोझ हल्का करे या अपने दिमाग को हल्का करे। वो अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि सबसे बेहतरीन दोस्त आपके अपने माँ बाप होते हैं। दूसरे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल होते हैं, वो आपके अच्छा टाइम गुजारने के लिए या आपको बहुत सी जगहों पे आपको सपोर्ट भी करते हैं वो दोस्त, लेकिन दोस्तों की वजह से भी आप दिमागी दबाव के शिकार हो जाते हैं। ये मैंने देखा है पर्सनली। आप 4-5 दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दोस्त आपका कामयाबी की तरफ जा रहा है, बाकी दोस्त उसको इस तरह के तंज शुरू कर देते हैं कि या तो वो उनको छोड़ देता है
या फिर वो शायद दिमागी बीमार हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और जो बात आपने कही ना कि सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है ना बच्चे का, वो फैमिली होती है. अब ट्रस्ट डेवलप हो गया, ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहेगा. अब अगर ये स्कूल में सबसे ज़्यादा होता है कि जब ये आइडेंटिटी फॉर्म होती है ना एक बच्चे की, वो डिफरेंट चीज़ों में होते हैं. अब वो एक चीज़ उसको पता है ये चीज़ अच्छी नहीं है करना, बट ग्रुप कह रहा है ये चीज़ बहुत अच्छी है करना. अब अगर वो नहीं करेगा सब मजाक उड़ाएंगे. इसको कंटिन्यू करते हैं, साथ एक कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से. जी जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी. जी तो उस वक्त से अब तक ये है कि मैं इस डिप्रेशन से निकल नहीं पा रही हूँ. मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आ ही नहीं पा रही हूँ, जबकि मैं जॉब भी कर रही हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब घर की बाहर की डबल हो गई हैं. एक बेटी है मेरे साथ, लेकिन मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं आ पा रही हूँ. तो प्लीज मुझे इसके लिए कुछ बताइए. अच्छा. डिप्रेशन में रहती हूँ 24 या दिन में 3, 4, 5 दफा. डॉक्टर सारा आपसे कोई सवाल करेंगी? हस्बैंड को बेहद मिस करती हूँ, बस बहुत ज्यादा परेशान हूँ. तो प्लीज आप मुझे इसके लिए बताएं. अच्छा, डॉक्टर सारा आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं. ये आपके अंकल की डेथ हुई थी 2 साल पहले? हस्बैंड की डेथ हुई थी, लेकिन आप अभी अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही हैं? जॉब कर रही हैं सब? जी जी, मैं वर्किंग हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और दायरे घर के बाहर के सारे जिम्मेदारी भी मुझ पर ठीक है, आपको मैं हम लाइव जवाब देते हैं. डॉक्टर सारा, ये इनका कहना ये है कि ज़ाहिर 2 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ हुई, अभी ये जॉब भी करती हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां डबल हो गई हैं और ये उनको मिस भी करती हैं, जाहिर है, जो कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता. तो ये उनका कहना ये है कि किस किस्म की ये डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं और ये क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इनको समझा दूं, जब किसी की डेथ होती है तो उस वक्त लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन वो जो शुरू का टाइम पीरियड होता है उसे हम ग्रीफ कहते हैं. अगर वो ग्रीफ 3 महीने तक ओवर नहीं हो रहा और आपने बिल्कुल सारी चीज़ें करना छोड़ दी, देन इट्स डिप्रेशन. अभी ये जिस साइकिल से गुजरी होंगी वो ग्रीफ होगा, लेकिन अब ये जॉब कर रही हैं, डबल जिम्मेदारियां आ गई हैं, ये थोड़ा सा डिप्रेशन माइल्ड मॉडरेट इस तरह का है कि इनको सोचें बहुत आती होंगी, फ्लैशबैक्स आते होंगे. इस टाइम पे इनको जरूर हो सकता है थिंकिंग भी नेगेटिव हो गई हो. अब कोई इनके लिए नहीं है जिससे ये शेयर कर सकें सारी चीजें. लाइफ में बहुत बड़ा गैप आ जाता है उस टाइम पे. इनको जरूरत है कि एक ये काउंसलिंग या एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके पूछें, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर ये अभी दवाइयाँ नहीं ले रही उसके बावजूद एक अच्छी लाइफ गुजारी है तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर इनका मूड बहुत लो रहता है, अब ये जाएं, किसी से हेल्प लें, बात करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी. जी, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए. जाहिर सी बात है, आपके ऊपर डबल जिम्मेदारियां हो गई हैं, उस वजह से भी आप परेशान रहने लग जाते हैं. हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी, सलमा बात करें कराची से. जी सलमा, क्या पूछेंगे? डॉक्टर से ये पूछना है कि एक बेटी है मेरी 3 साल की, तो वो जो होगा नेल बाइटिंग करती है. आवाज बहुत कट रही है आपकी. नाखून का नाखून. उम्र क्या है? 3 साल. 3 साल की बच्ची है ना? जी जी, वो ऐसे नाखून कमाना शुरू करती है, तो वो क्या ये डिप्रेशन में होता है? ठीक है, हम आपको जवाब दे रहे हैं. इस बिहेवियर को देखें. अभी तो ये 3 साल की बच्ची है, अगर नाखून काट रही है, आपने कैसी कोई हैबिट डेवलप की है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ वहाँ पे जाए. अगर एंशियस रहती है बच्ची बहुत ज़्यादा इनकी, या बहुत ज़्यादा घबराती है, किसी को देख के बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, तो फिर अगर ये एंग्जाइटी में लोग अक्सर नेल बाइटिंग करते हैं. ये ज़रा बहुत छोटी बच्ची है, थोड़ा सा देखें. अगर ये बिहेवियर बड़े होके भी रहता है देन आप इसको कंसल्ट करें. अदरवाइज अभी इसकी हैबिट डेवलप करें कि ये अब नेल कटिंग करनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है किसी जहनी दबाव के लिए. अच्छा, इतने छोटे बच्चे जब कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपको नजर आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, नाखून चबा रहे हैं, नेल्स चबा रहे हैं, या बहुत से लोग दांत पीसते हैं छोटे बच्चे, या बहुत छोटे छोटे डर की वजह से पीसते हैं, बगैर मकसद के खारिज करने लगते हैं, उस सूरत में आप उनको कहीं ना कहीं बिजी कर दीजिए ताकि वो डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत जरूरत होती है उस टाइम पे बच्चों को. तो इसको बच्ची का पैटर्न देखें आप कि किन सिचुएशंस में नेल बाइट कर रही है. पैटर्न नोट करें, उस पैटर्न को देखें, समझें और फिर इसको डिस्ट्रैक्ट करें या उस बच्ची को समझाएं. देखें किन सिचुएशन में लोगों के बच्ची बहुत छोटी है, अगर लोगों के बीच में एकदम से करती है, क्या खौफ है, क्या है, पैटर्न नोट करें इनकी वालदा जो है. डॉक्टर साहब, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे दिमाग में आया अभी कि जाहिर है मेरी बहनें भी देख रही हैं, भाई भी देख रहे हैं प्रोग्राम. बहुत सी वाइफ्स जो होती हैं उनको मोबाइल फ़ोन हस्बैंड का अगर छोड़ के गया तो उनको चेक करना. इसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ थोड़ी देर में, साथ कॉल को शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? मैं कराची से आयशा बोल रही हूँ. जी आयशा,
और मुझे ना अक्सर वो मेरे माशाल्लाह से 5 बेटे हैं, मियाँ है और घर में अकेली हूँ काम करने वाली, लेकिन पहले मैं सही होती थी, अब थोड़ा काम भी मुझे बड़ा लगता है, बहुत लगता है और मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ और मैं झगड़ती रहती हूँ बच्चों से, मियाँ से, और मुझे आंखों में और सर में ज्यादा दर्द रहता है और मैं सिलाई का काम भी करती हूँ और मजबूरन करना पड़ता है। और क्योंकि आजकल महंगाई है तो अफोर्ड नहीं कर सकते, माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35। बच्चे कितने बड़े हैं अभी? बच्चे कितने बड़े हैं आपके? एक 13 साल का है, एक 10 साल का है, एक 8 साल का है और एक 6 साल का और एक 4 साल का। ठीक है, हम आपको लाइव जवाब देते हैं। बच्चे डॉक्टर साहबा छोटे हैं जी बिल्कुल, यानी उनमें गैप कम है, फिर इनको मजबूरी में सिलाई करनी पड़ती है, घर के काम, बच्चे, फिर हस्बैंड पता नहीं क्या काम करते हैं, उनकी इनकम ज्यादा है कम है तो ही ये सिलाई करती हैं। ये भी एक बड़ा मसला, वही बेरोजगारी, फाइनेंशियल हमारे हालात, फाइनेंशियल इश्यूज, तो इसके बारे में क्या? देखें, पहले तो मैं इनको थोड़ा सा वार्न करूं, ये जो मुझे सिम्टम्स बता रही हैं थोड़े सिवियर हैं। ये अब छोटी डिप्रेशन की पहला साइन होता है कि आप जो चीज़ पहले कर रहे हैं नहीं कर रहे, अब वही गोल्स आपको बहुत बड़े लग रहे हैं वो सारी चीज़ें। सर में दर्द हो रही है तो इनको ज़रूरत है किसी एक डॉक्टर के पास रिज्यू करने की, शायद इनको एक दवा का वो दिया जाएगा जिससे ये रिलैक्स रह सकें। बच्चे कम है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, ही सोचती बहुत होंगी और ऑफ कोर्स जो ये सिचुएशन बता रही हैं सोच बहुत होती होगी, इनके जहन में सोचें नहीं रुकती होंगी, इनको रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। सलमा, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, जाके उनको डिस्कस करें, उनको बताइए। आप डॉक्टर सारा कराची में रहती हैं, आप डॉक्टर सारा के पास भी आ सकती हैं। आप हमारे प्रोग्राम के बाद यहाँ पे कॉल करके अपना नंबर ले सकती हैं और ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप कोई पागलपने की तरफ जा रहे हैं। साथ ही एक और कॉलर है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? हेलो जी, मैं मिसेज नसरीन साबिर बोल रही हूँ और मैं टीचर भी हूँ। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को जो होता है नफ्सियाती है तो बर्नार्ड शाह कहते तो मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं पढ़ा लिखा मास्टर होता है, उसमें कुछ दरअसल वालिदैन का भी होता है जो अपनी औलाद से तवज्जो नहीं देते हैं। बच्चा और बुरा तवज्जो चाहता है, सही, और होता है बच्चा परेशान होता है, कहते तो मोहब्बत करने वाला और बात करने वाला उनको बिगाड़ने में वालिदैन का बड़ा हाथ जाता है। ठीक है, तो अपने बच्चों को हर वालिदैन को चाहिए टाइम थोड़ा बहुत दे, उनके बातें सुने, बात करें, क्या होता है तुम स्कूल से क्या पढ़ के आए हो, क्या नहीं किया। और टीचर भी जो है ना, टीचर में वो रवैया नहीं रहा है, वो सिर्फ कहती है हमें सैलरी मिले। मैम अभी अगर आपने शुरू में प्रोग्राम देखा हो, नहीं वो प्यार करती है। जी जी, तो हम यही बात कर रहे थे, लाइव भी आपको इसका भी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। हम यही बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो बच्चों को टाइम दें। टीचर्स का रवैया अभी वो नहीं रहा। इनका ये खुद टीचर है, इनका कहना ठीक है। आपको भी पता है कि जब हम पहले टीचर्स का वाकई रवैया बहुत ज़बरदस्त होता था, अब वो नहीं रहा, बहुत फ्रेंडली होता था। अगर कोई स्टूडेंट उनको लगता था कि डल हो रहा है, सुस्त हो रहा है, ये क्यों डिस्कस नहीं कर रहा, ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो उसको इनकरेज करते थे, उनको बोलते थे। आज के टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हर टीचर एक जैसे हैं, बट मेजॉरिटी ये हो गया। देखिए वो गई टीचर्स भी इसी एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट से बच्चे आ रहे हैं और जिस माँ बाप, ठीक है, उनके घर में टीचर्स भी की वही भी कोई problems काउंसलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। टीचर्स को मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग्स कराना, इमोशनल पे ट्रेनिंग कराना, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग कराना, बच्चों को कैसे ऑब्जर्व करना है, टीचर्स को भी ज़रूरत है उस टाइम पे। एक बात है उन्होंने बहुत अच्छी कही जो मुझे याद आई है कि अगर पेरेंट्स जो हैं जॉब कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए हर चीज़ उनकी डिमांड फुलफिल करते हैं, तो वो पैम्पर्ड हो रहे होते हैं, फिर भी बहुत चांसेस होते हैं बच्चों के बिगड़ने जाने के। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछेंगी? जी, मेरे साथ मसला ये है, मेरे ना सर में बहुत दर्द रहता है और हर वक्त ना बस अजीब से टेंशन रहती है, सोचे आती है। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 27 साल है। 27। ठीक है, आप जॉब करती हैं, पढ़ती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करती, जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करती। मेरे 2 बच्चे हैं, बस घर में ही टेंशन सी रहती है, शौहर से गुस्से में लड़ना झगड़ना, उन्हें कुछ कभी कुछ कह देना,
बच्चों को पर गुस्सा आ जाता है, एकदम जज्बात में आ जाती हूँ। और ठीक सर में है, बहुत ठीक है, दर्द मैं होता है। आपको लाइव जवाब देते हैं जी। मैरिड हैं ये, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनका सर रहता है, बहुत सोचती होंगी, अपने लिए टाइम नहीं देती होंगी। ऐसी ख़वातीन को ज़रूरी है देखें अपने लिए टाइम निकालें। ये जो ये लड़ झगड़ रही हैं, कोई भी मसले मसाइल हैं, ये परेशानी अपनी है। एक टाइम आता है आप बिल्कुल गिविंग हो जाते हैं, सबको दे दिया, अब जब आपके लिए अपने लिए कुछ नहीं बचता तो आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। आपको जो करना अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करें, उन चीज़ों की तरफ वापस हैं, उन एक्टिविटीज़ को करें ताकि ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है ये कम होना शुरू हो जाए। नहीं कम होती फिर आप जाएं किसी के पास बात करें, अपनी अम्मी बहन किसी से बात करें जो आपको सही मशवरा दे सके, मजीद मसले को ख़राब नहीं आजकल करें। तो डॉक्टर साहिबा मसला ये रहा है कि भी आजकल मैं जहाँ देख रही हूँ मेरे पास लोग आते हैं, आपस में बहन भाइयों की भी वो ताल्लुकात बॉन्डिंग नहीं रही कि वो उनके साथ डिस्कस कर सके। तो इस सूरत में भी उनको भी काउंसलिंग करना, हर किसी के वो हर कोई नहीं जाता, हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, हर कोई एक दूसरे को अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे एक दूसरे को। ये अलमिया है कि अगर आप थोड़े से कामयाब हो रहे हैं तो ये सोचते हैं कि जी ये हमारे साथ जेलसी फैक्टर में आ गए हैं। या एक और बड़ा मसला है जो मैं आपसे भी पूछने वाली हूँ, 7 कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी राजेश बात कर रहा था मैं, कराची से। जी राजेश, क्या सवाल है? अच्छा, एक्चुअली मुझे पूछना थोड़ा सा ये है कि बेसिकली मेरे साथ है उनको थोड़ा सा इशू है कि घर में कभी कभी थोड़े जो है ना वो डिप्रेशन की वजह से वो फोन लाइन चीज़ों की थोड़ी वो चेक करती हैं कि पता नहीं कभी भी क्या हो जाता है उनको। ठीक है, आपको लाइव जवाब कुछ पूछने? नहीं, अच्छा ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। वो चेक करती हैं चीज़ों को। वही मैंने जो सवाल किया कि अक्सर ऐसा होता है कि वो बगैर वजह इतनी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में हर इंसान का एक हक होता है कि ज़िंदगी में वो थोड़ा सा उसको स्पेस चाहिए होती है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है या बहन भाई है, स्पेस बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल किसी के सर पे सवार रहना ये किसी भी रिश्ते की पायदारी नहीं है। अनहेल्दी रिलेशनशिप की सारी निशानियां होती हैं। हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है अगर आपको, स्टार्ट में पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। देखिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ट्रस्ट आ जाएगा। एक पॉइंट पे जब ट्रस्ट आ जाएगी, सारे इश्यूज की जो बात ये करें जो आप अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि चेक करना ये क्यों हो रहा है, ये ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हो रहा है। अब ट्रस्ट इशू जहाँ पे ट्रस्ट होगा वहाँ खुद ब खुद स्पेस होगी, वहाँ कोई ना कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आजकल लोग एक रश में लगे हुए हैं कि रिलेशनशिप बन जाए, शादियों के इशू, इसके इशू, तो वो बड़ा जल्दी अप्रोच कर लेते हैं किसी को, कर तो लेते हैं, बाद में समझ आता है कि ये हमारा कोई बॉन्ड नहीं बन पा रहा, जो ये सारी बातें ये बता रहे हैं, ये सब चीज़ें इनको भी देखना होगा कि अगर इन्होंने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस किए हैं, वो इसमें इनके साथ शामिल नहीं है उन चेंजेस में, तो वहाँ पे भी ये आ जाता है, गैप आ जाता है। ये भी आपको चेक करने की जरूरत है कि अगर वो पहले ऐसी नहीं थी अब तो अब ऐसे क्यों हो गए हैं। इसके पीछे आपकी भी किसी बिहेवियर का हाथ हो सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर सारा इस सवाल का जवाब तो आप यही दे दिया आपने कॉलर के साथ। तलाक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तलाक का डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम मैडम, मेरा बेटा है वो ट्यूशन में जो याद करता है स्कूल में फेल हो जाता है। ट्यूशन में याद करता है, स्कूल में भूल जाता है। स्कूल में भूल जाता है। क्या एज है उसकी? किस एज, क्या एज है, किस कौन सी क्लास में है? वो भी 8th क्लास में है और 14 साल है। ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा कब से? बचपन से मैं देख रहा हूँ उसको। बचपन से ही देख रहे हैं, ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। देखें ये बचपन से देख रहे हैं, अगर ये पैटर्न और अब जाके ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा पेपर में लिख क्यों नहीं रहा है? ऐसे केसेस बहुत होते हैं कि बच्चा पेपर में जाके लिख के नहीं आ रहा है, या फेल हो जा रहा है, भूल जा रहा है। क्या डर है उसको, वो उस एनवायरनमेंट में वो डरता क्यों है, वो क्यों नहीं लिख पाता, क्यों भूल जाता है? स्कूल में जाए, टीचर से बात करें। फिर अगर ट्यूशन टीचर कहती है कि यहाँ पे सब कुछ सही है, घर पे बच्चा आपको सही दिखता है, स्कूल में कुछ इशू है, क्लास में इशू है, क्या फ्रेंड्स में कोई इशू है, कोई इसको कुछ कहता है, तो स्कूल में जाके इनकी बात करनी बहुत जरूरी है इस टाइम पे। यानी वो क्या पता वो टीचर उसको इतना ज्यादा कुछ भी तवज्जो नहीं दे सकता। बच हो सकता है किसी और क्लास में हुआ, कभी टीचर ने बहुत डांटा हो, कोई टीचर्स को बहुत ज्यादा डांट देते हो, बच्चा डरता हो उनको देखते ही, एंशियस हो जाता हो, घबराहट, क्या सोच आती है, जरूरत है ये जाएं स्कूल में जाके बात करें। टीचर से बात करना बहुत जरूरी है। उनको भी आप बताइए कि ये इशू क्या है, वो भी आपसे डिस्कस करें। पेरेंट्स और टीचर्स का भी एक बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? झगड़े का मामला बना हुआ है।
ये जरा मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि आपने मेरी बीवी जो है उससे इतने झगड़े क्यों करती है, क्या वजह है? सब कुछ होने के बावजूद भी ये तो ये हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजूहात होती होगी। जी, तो ये आपको लाइव जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, हम हमेशा सामने वाले को ब्लेम करते हैं, ये काम कर रहा है, क्या पता मेरे अंदर वो गलती हो, मैं अपने अंदर वो क्यों चीज़ नहीं तलाश करती। तो ये मेरे ख्याल में इनको ये है, देखिए जब आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो जब ब्लेम कर रहे हैं, जहाँ ब्लेमिंग आ गई वहाँ एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे, बैठ के सुनना। भी जो भी सारे डाइवर्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उसकी वजह ही सारी यही है, दो लोग बैठते नहीं हैं, और जब बैठते हैं तो वो इस इंटेंशन के साथ बैठते हैं कि मैंने ये चीज़ें बतानी है, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने वो किया, ये किया। सो दैट्स रॉन्ग। गिव प्लेंटी ऑफ टाइम के सामने वाला शख्स भी सुने और आप भी समझें और नोट डाउन करें मुझे क्या चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ईगोइस्टिक लोग हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर नहीं होती, ख़राब हो जाती हैं। मेरे ख्याल में एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी है कि आप जितनी आप खुद को अहमियत देते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला मुझे उतनी इज्जत, उतनी अहमियत दे, उतनी ही उसको भी ज़रूरत होती है कि आपको वो उतनी ही आप उसको भी अहमियत दे। तो मेरे ख्याल में झगड़ों की वजूहात आदि तो यही खत्म हो जाती है। पहले जो इस सोसाइटी में एक चेंज आया, पहले कल्चर होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम्स का, आजकल बहुत न्यूट्रल होता जा रहा है, बर्दाश्त नहीं है, न्यूट्रल है, तो वो कोई बड़े इन्वॉल्व नहीं होते। पहले बहुत से मसले सुलझ जाते थे, अब वो दो लोग डिसाइड करते हैं, कंक्लूड करते हैं और चीज़ों को एंड कर देते हैं। तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मंसूर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है मंसूर साहब? ये यही बस जो आपका टॉपिक है इसके मुतालिक है कि मेरे ख्याल में तो जो मुल्क के हालात हैं और महंगाई है, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा वजह बन रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप ही बता दीजिए हालात के बारे में। बस यही है कि मतलब जो लोग हैं जो अपना जो गुजारा करते हैं, डेली वेजेस लोग जो होते हैं रोज के हिसाब से, वो बेचारे जो अब मेहनत करते हैं, सारे कमा के जाते हैं घर, और घर जाके भी बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, तो वो क्या करेगा? दूसरा स्टेप तो यही लेगा वो। जी, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं इस बात का। डॉक्टर साहब, इनका सवाल बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि इंसान जब पूरे दिन का बाहर से वो काम करने जाता है, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं अब जो डेली सुबह बैठते हैं कि रात को हम कोई कमा के कुछ लेकर जाएंगे, वो उतना लेकर नहीं जाते। घर जब जाएंगे उनकी फैमिली उनसे उम्मीद लगाकर बैठी होती है। उस सूरत में जाहिर है वो एक घर का सरबराह है, तो वो उन पे गुस्सा भी करेगा, सब करेगा। उसको ज़रूरत है, असल में उस इंसान को ज़रूरत है कि उसको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे बताएं कि वो जो मेडिसिन दी जाती है, जो आप रिलैक्स करते हैं आपके दिमाग को, क्या वो नींद की तरफ लेकर जाती हैं या वो दिमाग को आपके रिलैक्स करती हैं? मुझे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता दें। देखिए, ये डिप्रेशन दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है मिले, सिवियर और मॉडरेट है तो एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट सबसे पहले आपकी जो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको कम करता है। अब जब वो कम करता है, आपका दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा, तब आपको सुकून की नींद आएगी, एटलीस्ट आप रात में सो सकेंगे। अब जो ये बात कर रहे हैं ना, डेली वेजेस के लोग हैं, आप अगर इनका पैटर्न आइडेंटिफाई करें, रात को इसी टेंशन के साथ सो रहे हैं, इसी टेंशन के साथ सुबह उठ रहे हैं, नींद भी इनकी वही होती है, ये सोते नहीं है, दिमाग नहीं सो रहा इनका, सोता उसमें टेंशन चल रहा है। अभी क्या पूरा दिन गुजारेंगे उसको? तो ये तो हमारी एक वो मसला बन चुका है सोसाइटी का, जिसको शायद ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट लेवल सबको काम करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट के पास आके आप अपने ही मसले तो हल कर सकते हैं, बट हो नहीं सकता कि फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा है। मेरे ख्याल में हमारे गवर्नमेंट को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, क्या ये लोगों की तरफ कहीं इस तरह के हालात इख्तियार ना कर जाए कि लोग एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दें। साथ ही कॉलर भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आकिल बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है? जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जी पूछे। जिस तरह अभी शुरू में प्रोग्राम में बताया ना डॉक्टर ने, जी वही कंडीशन मेरे बेटे की है। क्या कंडीशन? हमने तो बहुत सारी बातें की हैं, आप थोड़ा सा कंडीशन बताएं। नहीं, जो आपने शुरू में बात की थी ना, यानी जो स्टूडेंट की, जी पढ़ाई के बारे में, ग्रेड और वो इस तरह की बातें, जैसे ना कुछ मैं बात करना चाह रही हूँ मगर हो नहीं पा रही मुझसे। असल में ना बहुत ज़हनी दबाव उस पर, और जॉब वगैरह छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। मैं आपको लाइव हम आपको लाइव जवाब देते हैं। डॉक्टर साहबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहबा, अच्छा डॉक्टर साहबा,
वाकई जहनी दबाव, डिप्रेशन, लेकिन मेरे ख्याल में आप इनको ज़रूरत है कि उससे पूछें। ये खुद भी मुझे बहुत जहनी दबाव का शिकार इस वक्त लग रही है, इनसे बात नहीं की जा रही है, तो ये भी एक अलामत होती है कि आप किसी को बता नहीं पा रहे, आप बात नहीं कर पा रहे और इनकी आवाज़ में वो चीज़ फील हो रही है। तो ज़रूरत है, मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम के स्टार्ट की बात कर रही हैं कि बेटा इनका यूनिवर्सिटी में, अगर यूनिवर्सिटी में है तो वो बहुत प्रैक्टिकल इशू से गुजर रहा होगा, जॉब की परेशानी, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेड्स नहीं, अच्छा ग्रेड्स अच्छे भी आ रहे होंगे, ये टेंशन आपके ग्रेड को भी लो कर देंगी। ज़रूरत है कि बच्चे से बात कर लें, नहीं तो देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन पहले ये खुद अपनी तबीयत बेहतर करें तो ये आगे बात कर सकेंगी बच्चे से। समझ डॉक्टर सारा, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें रह भी गई हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन रह भी गई। इंशाल्लाह फिर आपको इनवाइट करेंगे। आई होप कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत से लोगों की कॉल्स लगी, बहुत से लोगों की कॉल्स नहीं लगी। एवरी सैटरडे और संडे, हर हफ्ते और इतवार को 11 से 12 हेल्थ टॉक में हम आपको बताते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलवाते हैं और आपको बहुत सी चीज़ें बताते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, आपकी लाइफ में उनकी ज़रूरत है। प्रोग्राम का फीडबैक देते रहिए और यूट्यूब में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, ज़रूर बताइए। 18 और 19 को जुलाई को मैं और डॉक्टर बिल्किस इस्लामाबाद में हैं, तो आप वहाँ के मिल सकते हैं। तब तक यानी कि नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।